Hello everybody or welcome back to my channel. I'm Achal and in this today's video we are going to read a DSC core paper 2 which is European Classical Literature of first year English honors, and in that we are going to do unit 1 which is The Odyssey by Homer. I know the Odyssey is quite a huge epic poem and it had made you realize that oh my god how huge it is, but don't worry, we are going to make it easy in this video, so let's delve into it. Before starting about the Odyssey, let's understand that who was Homer and how he wrote such a huge poem for us. So Homer एक legendary ancient Greek poet है and he is traditionally credited with composing two most important epic in Western literature, the Iliad and the Odyssey. लेट मी टेल यू द अनदर फैक्ट हियर कि ऑडिसी सीक्वल है इलियड का. तो अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले इलियड को पढ़ना चाहिए था देन ऑडिसी, बट इन आवर सिलेबस इट इज़ ऑडिसी फर्स्ट. बट डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलियड टू इन दिस वीडियो सो दैट यू कैन रिलेट इट वेल. नाउ अभी तक ये बिल्कुल अनक्लियर है कि होमर क्या एक रियल पर्सन थे भी या नहीं, और वॉज ही अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पोएट्स. सो दिस इज़ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग. ऐसा माना जाता है कि he has lived around 18th century BC, और the Iliad and the Odyssey are always a central to Greek epic tradition and they have influenced countless works in literature and culture. And his works were originally passed down orally. स्टार्टिंग में तो ये orally passed हुआ था, but later down इसको लिखा गया and they had laid a foundation of some western storytelling. Now as I have told you कि हम थोड़ा Iliad का भी context देखेंगे, तो let's start that कि what was Iliad and what was it all about. So Iliad was about Trojan War, and Trojan War was a huge battle between the Greeks and the people of Troy. Now ये जो war है इसलिए हुआ था क्योंकि पेरिस जो कि प्रिंस ऑफ ट्रॉय थे, he has took Helen and Helen was a wife for Greek king and this was something which has angered Greek, और इसकी वजह से ये बहुत बड़ा huge battle शुरू हुआ था. अब ये story जो है it focuses on the last year of this 10-year war and shows bravery and struggle of all the heroes like Achilles and Hector. It also shows how gods like Greek gods Zeus, Apollo and Athena, they all get involved and helping or fighting against the hero. अब हम क्वेश्चन ये है कि इलियड खत्म कहाँ होता है और ओडिसी बिगिन कहाँ से होता है. तो इलियड खत्म तब होता है जो कि एक हेक्टर है and he is a greatest Trojan warrior. He end up with having death and the mourning of his family. यहाँ पे ये end होता है, और बट ये वॉर अभी भी चली जा रही है and but the story does not show the end of war itself. अब इसके बाद इसका सीक्वल आता है ऑडिसी, और ऑडिसी कहाँ से बिगिन होता है कि ट्रोजन वॉर खत्म हो चुका है, ग्रीक अपने घर लौट चुके हैं, बट ओडिशियस जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो है, ही इज नॉट एबल टू रिटर्न टू हिज आइलैंड इथाका. इथाका इज हिज आइलैंड and he is unable to return that. And in Odyssey we are going to read the story of the Odysseus who pick up 10 years after the Trojan War and how lost and trapped he is on the island of Nymph Calypso. Nymph Calypso के island पे he is trapped. Now उसकी जो wife है whose name is Penelope और उसका जो son है whose name is Telemachus, they all are waiting at home while group of suitors are causing trouble at their home because they want the throne. Now the Odyssey is Odysseus. This is the main line and it's about a long journey home and adventures and challenging he faced along the way. So this Odyssey is all about his journey, that adventurous journey. And let me tell you, the whole Odyssey book is divided into 24 books. So we are going to see the summary and analysis of each book. We will be starting from book 1 and book 2 where it is saying Athena visit Telemachus. And who is Athena? She is a god of wisdom and she visit Telemachus and the debate in Athena. तो हम देखेंगे कि जो book 1 है it is starting by invocation of muse. And what is this invocation of muse? यानी group of god talking to each other. And this is a way of Homer beginning a epic poem by calling on the muse for divine help and telling the story of Odysseus, showing that he is not speaking his own opinion but the words of God. This is a literary technique of Homer to start this epic poem like this. अब ये जो काउंसिल ऑफ गॉड होती है मीटिंग, यहाँ पे क्या बातचीत होती है, तो गॉड यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओडिशियस के सिचुएशन के बारे में कि वो बड़े ही दिनों से
ओजीजिया के आइलैंड पे, जो कि निम्फ ऑफ कैलिप्सो का आइलैंड है, वहाँ पे ओजीजिया उस आइलैंड का नाम है, वहाँ पे स्टक है। एंड एथीना जो होती है, हु इज़ गॉड ऑफ विजडम, एंड ज्यूस उसके फादर होते हैं, ही आस्क हिज फादर टू रिटर्न, लेट हिम रिटर्न टू इथाका, एंड ज्यूस अग्रीज ऑन दिस पॉइंट एंड ही ऑर्डर कैलिप्सो टू हेल्प ओडिशियस। अब एथीना अपना काम करती है, सी विजिट टेलीमेकस हु इज सन ऑफ ओडिशियस। In Ithaca, Odysseus' son Telemachus is upset about the suitor taking over his home. तो जो टेलीमिकस है वो बड़ा ही उदास पड़ा हुआ है कि किस तरह से जो सूटर्स हैं बाहर खड़े हुए हैं एंड दे आर जस्ट फाइटिंग, कैसे उनको थ्रोन मिल जाए। तो एथीना वहाँ जाती है, बट वो अपने रियल फेस में नहीं जाती है, बट सी डिस्गाइज्ड एज अ मेंटोर, एंड वो इनकरेज करती है टेलीमिकस को कि वो जाए, मोटिवेटेड हो, स्टैंड अप हो अपने लिए, और एक जर्नी पे जाए टू फाइंड अ न्यूज़ अबाउट हिज फादर कि वेयर ही इज़। अब यहाँ पे टेलीमिकस के बिहेवियर में हमें चेंजेस दिखती है कि जो पहले अपसेट था वो ही चेंज हिज बिहेवियर एंड ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर एथीना विजिट, एंड ही टेक्स चेंज इन द हाउस, रिब्यूकिंग हिज मदर एंड द सूटर, शोइंग दैट ही इज ग्रोइंग इनटू अ मैन। अब ये जो टेलीमिकस है ये एक पब्लिक मीटिंग बुलाता है और वहाँ ये बोलता है, डिनाउंस करता है सूटर्स को। उनमें से एक सूटर होते हैं जिसका नाम है एंटीनियस, एंड ही इंसल्ट्स हिम। बट टेलीमिकस जो है वो प्रोफेसाइज करता है कि ओडिशियस आएगा एंड ही विल रिटर्न एंड ही विल किल ऑल ऑफ देम। और उसी टाइम पे टू ईगल फाइटिंग कंफर्म दिस थिंग दैट येस ओडिशियस विल रिटर्न बैक वन डे। अब टेलीमिकस की जर्नी शुरू होती है बिकॉज एज एथीना हैज सजेस्टेड हर टू मूव एंड फाइंड अबाउट हिज फादर, so he decided to sail to Pylos and Sparta, ये दो जगह हैं, and to gather information about his father. He keep his plans secret from his mother also and begin his journey with Athena, who was disguised as a mentor and she was guiding him. अब इथाकास की स्ट्रगल क्या है कि इथाका इज इन क्योस है क्योंकि ड्यू टू सूटर्स, वाइल टेलीमिकस पेनिलोपी स्ट्रगल टू डील विद देम। पेनिलोपी इज लॉयल एंड वाइज वाइल टेलीमिकस इज लर्निंग टू एक्ट लाइक हिज फादर एंड रेडी फॉर एक्शन। तो ये स्ट्रगल्स बताए गए हैं कि अभी ओडिशियस अपने घर पे नहीं है, अपने आइलैंड पे नहीं है, तो वहाँ पे कैसे सूटर्स ने बिल्कुल बाहर खड़े हैं एंड दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर पेनिलोपी एंड टेलीमिकस एज वेल, बट बोथ ऑफ देम आर trying to be the responsible one at their own place. Like Penelope is still loyal to his husband and Telemachus is trying to act like a mature one and act like his father and ready for his action. So ये सब होता है book 1 and book 2 में. Now coming to book 3 and book 4, which is saying about Pylos and Sparta, the two places where Telemachus visit. तो Telemachus आता है Pylos पे, जो कि एक जगह है सुबह सुबह बिल्कुल, जहाँ पे पीपल आर ऑफरिंग सैक्रिफाइस टू सीडन हु इज अ गॉड ऑफ सी एंड टू ऑनर हिम एंड सीक हिज फेवर। और ये जो सैक्रिफाइस है ये इंपॉर्टेंट रिचुअल है फॉर पीपल ऑफ पाइलस बिकॉज दे सीक सम डिवाइन प्रोटेक्शन स्पेशली कंसर्निंग द सी विच प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ। अब टेलीमिकस इनिशियली बड़ा ही अनश्योर होता है कि किस तरह से वो नेस्टर यानी जो किंग है पाइलस के उन्हें अप्रोच करेगा, बट जैसा कि वो गाइडेड हुआ है एथीना के द्वारा, ही इज काइंड कॉन्फिडेंट, तो वो उतना डरता नहीं है एंड ही मूव ऑन। आफ्टर दैट जो नेस्टर होते हैं किंग ऑफ पाइलस, ही वेलकम एंड वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि हाउ थिंग्स हैपेंड विथ हिम। सो ही टेल्स हिम दैट ही वॉज अ वाइज किंग ऑफ पाइलस एंड ग्रीट टेलीकेमस एंड ऑफर हिम हॉस्पिटैलिटी। टेलीकेमस जो है वो एथीना से काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया है एंड ही गिव्स अ नोबल स्पीच और कॉन्फिडेंट रहता है और पूछता है अपने फादर के बारे में इंफॉर्मेशन टू नेस्टर दैट वेयर ही इज एंड हाउ व्हेन ही विल कम बैक। नेस्टर सबसे पहले तो ओडिशियस को बड़ा ही प्रेज करता है अबाउट हिज विस्डम एंड ब्रेवरी एंड रिकाउंटिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, और खुद के एक्सपीरियंस को भी याद करता है ट्रोजन वॉर से और अपनी डिफिकल्टी को बताता है कि मैं कैसे अपने घर आया। वो अपनी ट्रेजिक स्टोरी ऑफ एगामेम्नन के बारे में बताता है, जो कि एगामेम्नन हु वाज किल्ड बाय एगेस्थस एंड मेंशन द ट्रबल ऑफ टेलीमिकस एंड पेनिलोपी आर फेसिंग इन इथाका। और ये भी बोलता है कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि यू पीपल आर, योर मदर एंड यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट नेस्टर कैन नॉट गिव टेलीमिकस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ओडिशियस वेयर अबाउट, मतलब ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। बट जब ये डिपार्चर लेता है टेलीमिकस, नेस्टर गिव हिम एडवाइस और he advises Telemachus to travel to Sparta जाओ and visit Menelaus
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो नेस्टर ऑल्सो, और अपने साथ साथ नेस्टर ने अपने बेटे साइट्रेटस को भी भेज देता है ये कि गो accompany Telemachus on this journey. And after a grand feast, Telemachus and Satyrius set out to 2-day journey to Sparta, leaving Nestor's court behind. मतलब ये नेस्टर से निकल के नेस्टर के कोर्ट से निकल के दे मूव टू स्पार्टा। पाइलस से अब ये कहाँ जा रहे हैं, स्पार्टा जा रहे हैं। एंड यहाँ पे इसको नेस्टर के बेटे की एक कंपनी भी मिल जाती है, टेलीमेकस को। अब टेलीमेकस स्पार्टा में आता है। व्हाट हैपन्स हियर? सो here in Sparta, Telemachus and Satyrius, who is son of Nestor, they both are warmly welcomed by Menelaus. अब who recognizes them as aristocrats? ये सोचता है कि they are aristocrat, but they are invited to a banquet where Menelaus talks about Trojan War and praises Odysseus for his heroic effort, and he is expressing doubt whether Odysseus is alive, ऐसा कुछ बोलता है। और इस चीज को सुनने के बाद Telemachus is kind of sad and is moved to tears upon hearing this. हेलेन जो होती है, सी recognize this and Menelaus stories. Helen recognized Telemachus as a son of Odysseus based on his resemblance to his father. ये पहचान जाती है। अब Menelaus प्लीज्ड, वो बड़ा ही खुश होता है देख के ऑडिशस के बेटे को, और याद करता है वो भी ट्रोजन वॉर के दिनों को, और एक्सपीरियंसेस बताता है। ही ऑल्सो स्पीक्स ऑफ हिज ओन डिफिकल्ट, वो खुद की भी डिफिकल्टी बताता है कि वो कैसे घर आया, और ये भी बताता है कि ऑडिशस ने भी कितनी स्ट्रगल्स देखी। मेनेलियस स्टोरी हाईलाइट चैलेंजेस ऑफ रिटर्निंग होम आफ्टर द वॉर। अब मेनेलियस इनकाउंटर विथ प्रोटियस। Menelaus tells Telemachus about his encounter with Proteus, the old man of the sea. अब ये बोलता है कि मुझे ना एक Proteus मिले थे, who was the old man at the sea, और उन्होंने ये रिवील करा था कि Odysseus को लास्ट टाइम पे उन्होंने आइलैंड ऑफ कैलिप्सो में देखा था। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिली Telemachus को Menelaus के यहाँ से कि लास्ट टाइम Odysseus को विटनेस करा गया है आइलैंड ऑफ कैलिप्सो में। अब Menelaus' story also include the tragic fate of Agamemnon, who was killed by his wife Clytemnestra and her lover Aegisthus. Menelaus invites Telemachus to stay longer. अब ये सारी चीज़ें ये बताता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे देता है कि लास्ट टाइम जो है ऑडिशस यहाँ दिखा था, और जो Menelaus है ये बोलता है कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन Telemachus को इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो पोलाइटली ही इस चीज़ को डिक्लाइन कर देता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्च हिज फादर। अब सूटर्स, यहाँ पे इथाका में क्या हुआ है, बैक इन इथाका सूटर्स हैव डिस्कवर्ड, ये उन्हें पता चल गया है कि Telemachus कहीं चला गया एंड इज प्लानिंग टू किल हिम ड्यूरिंग हिज रिटर्न। और उसी बीच में पेनिलोपी को भी लर्न्स ऑफ द प्लॉट एंड इज कंफर्टेड बाय अ ड्रीम सेंट बाय एथीना हु एश्योर्स हर। अब पेनिलोपी इतनी परेशान थी एंड दिस गॉड ऑफ विजडम हैज एश्योर्ड हर बाय गिविंग हर अ ड्रीम दैट Telemachus सेफ है, एंड अथीना खुद ही उसको गाइड कर रही है। कमिंग टू, अब हम वी आर डन विद बुक 3 and 4, कमिंग टू बुक 5 विच इज कैलिप्सो एंड ओजीजिया, जहाँ पे ऑडिशस ट्रैप्ड है। अब देखो, होता ये है कि जो ज्यूज हैं ये कमांड करते हैं कि अब हमें ओडिशस को छोड़ देना चाहिए, और बुक 5 में गॉड इज डिस्कस अबाउट ओडिशस फेट। एथीना पूछती है ज्यूज से कि क्यों ओडिशस अभी भी फंसा हुआ है कैलिप्सो के आइलैंड पे, और ज्यूज एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक पार्ट ऑफ प्लान है, ओडिशस अपने घर बड़े ही सेफली पहुंच जाएगा, और इसीलिए वो हर्म्स मैसेंजर इसको भेजते हैं कि कैलिप्सो को बोलो कि वो उसे छोड़ दे। कैलिप्सो जो कि इतने दिनों से ओडिशस के साथ रह रही है, सी हैज फेल्ड इन लव विथ ओडिशस, yearning for home, and Calypso, a nymph, has kept Odysseus on her beautiful island which is Ozygia for 7 years. अब 7 साल से ये लोग रह रहे हैं वहाँ। Despite the paradise-like setting, Odysseus longs for his wife. अब यहाँ पे loyalty शो करी गई है कि इतने सालों से वो रह रहा है Calypso नाइफ के साथ, but he is longing for his wife Penelope and his son Telemachus and back home in Ithaca, and he want to return even though Calypso offer him immortality. But Calypso's reluctant agreement, अब Hermes आता है and he tells that Zeus want you to leave Odyssey, but Calypso इस बात को सुन के बड़ी ही upset और angry हो जाती है that she feels that gods are jealous of her relationship with Odysseus, but at the end she agree because she know that she can't defy with God. तो फिर होता है कि Odysseus फिर भी अभी भी caution है उसको कि as a like
वो मान तो जाती है, छोड़ रही है, बट फिर भी वो कैलिप्सो से पूछता है लीव करने से पहले दैट ही आस्क हर टू स्वेयर शी वॉन्ट हार्म हिम, रिफ्लेक्टिंग हिज थॉटफुल वेरी नेचर, एंड दिस रिफ्लेक्ट थॉटफुल वेरी नेचर ऑफ किंग ओडिशियस। अब सिडन स्टॉर्म, अब जैसे ही वहां से छूटता है ओडिशियस, सिडन इज अ गॉड ऑफ सी एंड ही एंड ओडिशियस सर्वाइवल, तो ही इज ऑलवेज लाइक अ बैरियर, एंड आगे आपको पता चलेगा वाई ही इज क्रिएटिंग अ बैरियर। ही सेड व्हेन ओडिशियस सेट्स अ सेल, सिडन हु इज अ गॉड ऑफ सी सेंड अ स्टॉर्म एंड डिले हिज जर्नी। अब सिडन इसलिए बैरियर बन रहे हैं बिकॉज ही इज एंग्री टू ओडिसियस बिकॉज ही हैज ब्लाइंडेड हिज सन। अब आगे व्हेन यू विल गेट अ फ्लैशबैक यू विल न्यू कि क्यों वाई ओडिसियस हैज ब्लाइंडेड हिज सन हुज नेम वाज पॉलीफेमस, एंड इसीलिए सिडस को बदला चाहिए एंड वो उसके जर्नी को और डिफिकल्ट बना रहा है और शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर भी ओडिसियस सर्वाइव करता है विद द हेल्प ऑफ सी नाइफ एंड एथीन, ये दोनों इसको मदद करते हैं एंड ही सर्वाइव, एंड आफ्टर सर्वाइविंग ही अराइव्ड एट अ प्लेस कॉल्ड फेइशिया। अब देखो अब क्या होता है कि ये जो ओडिशियस है ये इस लैंड पे पहुंचता है, लैंड ऑफ फेइशिया। अब इट इज enchanted land with a human society, or it's a place that represent both beauty and possibility of returning to human civilization before he can reach Ithaca. We are done with book 5. Now comes to book 6 and book 7. अब यहाँ पे Odysseus finally arrive कर जाता है in a place of Phaeacia. अब after being shipwrecked, Odysseus washes up on the island of Phaeacia where he encountered Nausicaa. अब who is Nausicaa? She is a daughter of King Alcinoüs and अब एथीना यहाँ पे फिर मदद करती है। नौसिका के सपने में क्या होता है कि एथीना आती है एंड गाइडेड बाय ड्रीम सेंट बाय एथीना और कुछ तो बोल सी हेल्प्ड हिम, और जिसकी वजह से नौसिशिया हेल्प्ड ओडिशियस बाय प्रोवाइडिंग हिम विद फूड, क्लोथ्स एंड एडवाइस ऑन हाउ टू अप्रोच टू द सिटी। अब बाय हर गाइडेंस ओडिशियस मूव at her place and she directs Odysseus to the palace, advising him to wait before entering the city to avoid gossip. And Odysseus, dressed and cleaned up, approaches King Alcinous, who is the father of Nausicaa, and Queen Arete palace with the respect, impressing them with his demeanor. अब यहाँ पे ओडिशियस को बड़ा ही हॉस्पिटैलिटी वो लोग अच्छे से इसे रखते हैं। किंग एल्किनस एंड क्वीन एर्टिटा ऑफर्ड ओडिशियस हॉस्पिटैलिटी और उसकी स्टोरीज को सुनते हैं। ही रिकाउंट्स हिज जर्नी। अब यहाँ पे दिस इज अ टाइम पीरियड वो अपने जर्नी को रिकाउंट कर रहा है एंड लेट हिम सोर्स इंक्लूडिंग हिज चैलेंजेस एंड हेल्प्स फ्रॉम नौसिका एंड द फेइशियंस। जो लैंड ऑफ फेइशिया है दे कॉन्ट्रास्ट विथ हॉस्टाइल एनवायरमेंट ओडिसियस हैज फेस्ड अर्लियर इन हिज ट्रैवल। अब देखो देयर इज अ डेमोडोकस सॉन्ग एंड ओडिशियस रिफ्लेक्शन। तो जब उनके यहाँ कुछ एक ऐसा पार्टी काइंड होता है देयर वेयर ओडिसी has get some reflection. So during a feast the bard Demodocus sings about Trojan war. तो यहाँ ये ट्रोजन के वॉर के बारे में कुछ तो गाता है जो कि ओडिसियस के आंखों में इस गाने को सुन के ही इज लाइक अ टीयरी and that highlights somewhere emotional connection to his past and the consequences of the war. Now here the divine intervention and hospitality theme, that Phaeacians are blessed with divine favor, reflecting the theme of hospitality that plays a crucial role in the Odyssey, and their welcoming nature contrasts with the many struggle Odysseus has endured in hostile land. तो नाउ अब क्या होता है कि उसको याद आ जाता है एंड दैट इज वाई आगे वी विल बी रीडिंग अबाउट द फ्लैशबैक ऑफ द स्टोरी जो कि ओडिशियस इन लोगों को लैंड ऑफ फेइशियंस को सुनाता है। सो इन बुक 9 to 12 ओडिशियस विल बी यूजिंग हिज नैरेटिव शिफ्ट टू फ्लैशबैक मोड, जहाँ पे ओडिशियस खुद उन सारी चीज़ों को याद करेगा, इवेंट्स को कि क्या क्या हुआ था इन आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय, एंड ही विल टेल अ स्टोरी टू फेइशियन जहाँ पे ही विल बी एक्सप्लेनिंग हिज जर्नी बैक टू होम। और ये जो यहाँ बुक 9 से बुक 12 तक की जो बुक्स हैं दे विल सर्व एज अ रिफ्लेक्शन of his past adventure, and Odysseus is now looking back in everything that happened and sharing it with other. तो सबसे पहले ये बोलता है कि जैसे ही ट्रॉय का वॉर खत्म हुआ था ओडिशियस और उसके जितने भी साथी थे वो सिटी ऑफ इस्मैरस में पहुंचते हैं। सिटी ऑफ इस्मैरस विच वॉज होम टू द साइकॉन्स
जिसने ट्रोजन को सपोर्ट करा था। इसका मतलब कि हमारे दुश्मन के ये दोस्त हैं। तो हमारे तो दे और ये क्या करते हैं, ये ओडिशियस और उसके मैन दे प्लान टू लूट द सिटी एंड कैप्चर वुमन, बट ओडिशियस ऑर्डर अ क्विक रिट्रीट। बट लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं दे डिसओबे दिस और वहां पे बहुत देर के लिए रुक जाते हैं, जिसकी वजह से काउंटर अटैक हो जाता है साइकॉन्स के द्वारा और 6 ऑफ ओडिशियस मैन आर किल्ड बिफोर दिस केव। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अब ओडिशियस इज टेलिंग अस फ्लैशबैक स्टोरी कि जैसे ही वॉर खत्म हुआ था कैसे वो यहाँ इस लैंड में फंस गया एंड क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना दिस थिंग कि दे हैव मूव टू सिटी ऑफ इस्मैरिस और यहाँ ये चीजें हुई थी, जिसमें से 6 आदमी जो है वो मारे गए थे ड्यू टू देयर डिस्कम्फर्ट एंड लेजीनेस। अब क्या होता है दूसरी बार द स्टॉर्म। तो आफ्टर द अटैक दे सेल इनटू फियर्स स्टॉर्म विच लास्ट फॉर 2 दिनों 2 रातों तक वो स्टॉर्म रहता है एंड द स्टॉर्म ड्राइव्स देम ऑफ कोर्स एंड आफ्टर सेवरल डेज दे रीच टू अ लैंड ऑफ लोटस ईटर। अब उससे उड़ते उड़ते बचते बचते कैसे भी ये लोटस ईटर लैंड पे पहुंचते हैं, जहां पे सम मैन आर टेम्प्टेड टू स्टे एंड फॉरगेट अबाउट रिटर्निंग होम। और इसके जो कुछ साथी है ये टेम्प्ट हो जाते हैं उस लैंड से एंड दे फॉरगॉट दैट दे हैव टू रिटर्न होम ऑल्सो, बट ओडिशियस अगेन फोर्स देम टू लीव। अब coming to the Cyclops, the group then arrives at the land of Cyclops, which was a wild and uncivilized people. अब यहाँ ये third time यहाँ पहुँचते हैं. So keep in mind, at very first they are reaching city of Ismaris. At the second time they are reaching this Lotus Eater land, and third time they are reaching this Cyclops. They find a cave belonging to Polyphemus. अब now here comes a story. आप लोगों को मैंने बताया कि स्टार्टिंग में why the Sidon, the god of sea, was stopping Odysseus to go his home, because यहाँ पे जो साइक्लॉप्स में एक केव था जो कि Polyphemus, जो कि बेटा है sea of god का, is a giant one-eyed cyclops. And when Polyphemus returned, he trapped them in a cave and eat some Odysseus man. तो ये काम करता है, वो आता है और कुछ आदमियों को ट्रैप कर लेता है और उन्हें खा जाता है। लेकिन ओडिशियस यहाँ पे एक प्लान बनाता है एंड ही डिवाइसेस अ क्लेवर प्लान वहाँ से बचने के लिए। वो पॉलीफेमस को वाइन दे देता है एंड मेक हिम ड्रंक एंड टेल हिम कि तुम्हारा जिसने उसको ड्रंक करा है उसका नाम नोबडी है। देन व्हाइल पॉलीफेमस स्लीप ओडिशियस एंड हिज मेन ब्लाइंड हिम, वो उसको ब्लाइंड कर देते हैं एंड विथ शार्प ऑलिव स्टेक, एंड दिस वाज अ हार्श एक्शन बाय ओडिशियस। उसको अब इस काम की वजह से फ्यूचर में ओडिशियस को नहीं पता था कि वो इतना फंस जाएगा, बट ही डू दैट एंड फाइनली वहां से वो स्केप हो जाते हैं। नाउ दिस साइक्लॉप हु इज सन ऑफ सी गॉड, ही गेट ब्लाइंडेड एंड कॉल फॉर हिम हेल्प, बट व्हेन हिज नेबर आस्क, उसके नेबर पूछते हैं कि हु इज अटैकिंग हिम, ही रिप्लाइज नोबडी एंड हर्टिंग हिम, एंड इसी की वजह से कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ओडिशियस और उसके मैन वहां से चले जाते हैं हाइडिंग अंडर द सीप एज अ पॉलीफेमस लेट देम आउट ग्रेज। अब वैनिटी एंड रिवेंज। सो वंस सेफ at sea, Odysseus in a moment of pride revealed his true identity to Polyphemus. अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है Odysseus से कि ये सेफ्टली पहुंच जाता है तो ये प्राइड में बड़े ही गर्व से ही बता देता है अपनी ट्रू आइडेंटिटी कि वो कौन है Polyphemus को। और यहाँ पे द फाइनल थिंग कम, द साइक्लॉप कर्सेस हिम एंड आस्किंग हिज फादर सिडन, जो कि सी गॉड है, टू प्रिवेंट Odysseus फ्रॉम रिटर्निंग होम, इसे घर ना भेजे, मतलब बैरियर बना के रखे, and make his journey extremely difficult, and this is a curse which lead Odysseus for this long delay in reaching Ithaca. Now you got the point that why he has taken this time to reach his home. And the adventure shows that Odysseus' cleverness but also his pride which causes him more trouble later. यानी चालाकी तो सही है बट हमें उस चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। फाइनली कमिंग बुक 10, वो पहुंचते हैं फिर उनके सारे साथी अराइवल एट एओलिया। ओडिशियस एंड हिज क्रू लैंड ऑन द आइलैंड ऑफ एवोलिया वेयर एवोलस, जो कि गॉड ऑफ विंड हैं, ही गिव ओडिशियस अ बैग कंटेनिंग ऑल विंड्स। ये बोलते हैं सारे विंड्स को देते हैं कि दैट विल हेल्प यू टू शेल होम, बट दे आर इंस्ट्रक्टेड टू नॉट ओपन इट, यानी जो बैग ऑफ विंड है दे हैव टू नॉट ओपन इट। बट लेकिन जैसे ही वो इथाके की तरफ अब पहुंचने लगते हैं, ओडिशियस सो जाता है, लेकिन उसके जो साथी होते हैं वो सोचते हैं कि इस बैग में जरूर कुछ ट्रेजर होगा, इसीलिए हमें खोलने से मना किया है, और वो अपने इस बेवकूफ़ी में दे ओपन दैट बैग
and that caused a storm that blows them far from Ithaca. They returned to Aeolia, but Aeolus refused to help again, believing that gods have cursed them. अब ये बोलता है कि आप लोगों ने गलती करी है, आपने क्यों खोली, and God have cursed you all, so I am not going to help you all. So now the Laestrygonians, they then reached to a land of Laestrygonians, which was giant cannibals who destroy all of their dishes except one, and killing many of his men. यहाँ पे भी बहुत साथी उसके मारे जाते हैं. Odysseus narrowly escape, यहाँ से बच जाता है with few remaining survivor, and they finally land to this island of Circe. और इस island पे there are powerful sorceresses. Odysseus men are turned into pig by her magic. अब ये land of magic है, island of Circe, and उसके जो साथी हैं they are turned into pig by her magic, and with the help of Hermes who gave him a protective herb. फिर यहाँ पे जो Hermes होता है इन्हें कुछ protective herb देता है. Odysseus confronts Circe, who eventually turn his man back and invite them to stay on her island. फिर एक साल वहाँ वो सर्सी पे वेट करते हैं उसके साथ, ऑडिशस और उसके मैन सर्सी आइलैंड पे फॉर अ ईयर. दे रेस्ट एंड रिकवर. हाउएवर दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर जर्नी होम, एंड सर्सी एडवाइज देम टू विजिट अंडरवर्ल्ड टू कंसल्ट द प्रोफेट टायरेशियस. तो यहाँ पे सर्सी इनकी कुछ तो मदद करती है, और एक साल यहाँ ये रुकते हैं, और फिर ये सर्सी सजेस्ट करती है यू शुड विजिट लैंड ऑफ अंडरवर्ल्ड. सो what is the significance of this episode? That it marks a crucial turning point. Circe is representing both danger and help, offering Odysseus his man much needed respite. Her guidance and advice of Tiresias steer them towards the next stage of their journey. So we are done with book 10 till this video, and in the next part I will be teaching you from book 11 to book 24, because in total we have this 24 book. That's it for this video, and thank you for watching this video. And if you like or dislike anything about this video, please let me know.